Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I hope you all are okay and you are participating in the classes and you are also engaged with your classes, okay? And you are also practicing the social distancing in these challenging times of COVID-19. You are also taking care of yourself and your family and people around you. Okay, with this hope and this optimism, we want to start our class today. You must recall our past lectures in which we studied briefly what are the markets and what are the market structures and how demand and supply rules rules change or apply as per the market conditions and market structures. What are the different market structures and how the price decisions are taken by these structures and firms in these market conditions. Okay, so today we will discuss another the segment, and that is the pure computation. Okay, let us explain and let us revise those concepts again in order to understand fully. If anybody has the questions, you may ask me, you may reach me at any on my emails and through WhatsApp or through any means which you feel comfortable. Okay, so let us begin with the defining what is the pure computation. Okay, what do we mean by the pure computation? We all know that the economics groups and industry into four distinct market structures. Okay, what are those four market structures? Firstly, it is the pure competition. Okay, then pure monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. We have discussed these in last lectures, but we will also define them once again. Okay. So these four market methods differ in several respects. Say, for example, the number of firms in the industry, whether those firms produce a standardized product or try to differentiate their products from those of other firms. And it also covers how it is easy or how it is difficult for the firms to enter into the industry or to exit the industry. So we must define these four models. Firstly, the pure competition. What is that? It involves a very large number of firms which produce the products which are standardized. Okay. What do you mean by the standardized products? Standardized products mean the products are not differentiated or easily differentiated from each other. Say, for example, the cotton. So, for which each product's output is virtually identical to that of every other producer. So, you can take example of the different producers of the cotton. So, you cannot differentiate the cotton of producer A and cotton of the producer B. Is there any difference? I think there is no any difference. You cannot differentiate. So all the producers of the cotton are belonging to the industry which involves pure competition, right? Which reflects pure competition, in which there is standardized products, and there are many firms in this market form or market structure. Okay, so we can also see that when the products are standardized and products are common, they are not differentiated. There is nothing special for the producer, so everybody can enter into the market very easily or enter into the industry very easily. Okay, so this is what the pure competition says. So all the farm commodities like cotton, like wheat, strawberries, or soya bean, and states, what do? They stock the market and the stock market and the foreign exchange market.
These all are the example of pure competition, because there is no any differentiation with regard to the products, with regard to any specialty of the producers. Okay, so this is called pure competition. Okay? तो प्योर कंपटीशन क्या हुआ? प्योर कंपटीशन वो है कि जब जो प्रोड्यूसर्स हैं एक उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे हों, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा हो, और वो किसी एक ही टाइप की जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हों, और उनकी प्रोडक्ट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट ना की जा सकती हो एक दूसरे से। एग्जाम्पल थी जैसे वीट है, काटन है, और या स्टॉक मार्केट के लोग हैं, ठीक है, या एक्सचेंज मार्केट के लोग हैं, वो एक ही तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, और इस वजह से वो उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकती, लिहाजा ये प्योर कॉम्पिटिटर है। ठीक है, उनमें एंट्री भी जो है वो रिलेटिवली इजी है। तो सेकंड जो मॉडल है, ओके, सेकंड जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो क्या है? The monopolistic competition is characterized by a relatively large number of sellers producing differentiated products, say for example clothing, furniture, books, etc. Okay, okay, is so what is in monopolistic competition? Again, there are large number of sellers who produce the products which can be differentiated from each other, say for example clothing, furniture, books, etc. Okay, and present in this model is widespread non-price competition, a selling strategy in which a firm does not try to distinguish its products on the basis of the price, but instead on attributes like design and workmanship. Say for example, we call it a product differentiation. Okay, either entry to or exit from the monopolistically competitive industries is quite easy, it is not difficult. Okay, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि जब लोग जो हैं वो किसी भी एक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हो, मगर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो, डिफ्रेंशिएट की जा सकने वाली हो। सही, आप ये देखें जो फर्नीचर के हैं लोग या क्लोथिंग के लोग हैं, तो आप उनको आप जो है उनकी प्रोडक्ट्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कपड़ा गुलामन से खरीद सकते हैं, कपड़ा आप जो है वो अलकरम से भी खरीद सकते हैं, मगर ये आप किसी एक स्टफ की भी बात करें, मगर फिर भी डिज़ाइन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, और स्टफ के हिसाब से, वर्कमैनशिप के हिसाब से, सर्विस एंड डिलीवरी के हिसाब से, ठीक है, किसी न किसी लिहाज से लोग जो है एक इंडस्ट्री को या एक प्रोड्यूसर को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन अप्रोच। जो प्योर कंपटीशन था उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें क्या है? उसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है। अब उसमें पहले वाले में क्या था प्योर कंपटीशन में कि एक बंदा जो है वो सिर्फ मार्केट शेयर अगर ज्यादा हासिल करना चाहता है, रेवेन्यू ज्यादा हासिल करना चाहता है, तो ही शी हैज टू एडजस्ट इट्स प्राइस। तो उसको हम कहते हैं प्राइस कंपटीशन। यदि प्राइस की वजह से कंपटीशन है, आप प्राइस डिक्रीज करेंगे आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, आप प्राइस इंक्रीज करेंगे आपकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ जब आप प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तब आप फिर आप देखते हैं किसको? आप देखते हैं प्राइस को। जब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है तो फिर लोग जो हैं दे आर विलिंग टू पे प्रीमियम। ठीक है, यानी दे आर विलिंग टू bear more cost because they want to enjoy some other features of the product which are unrelated to the price. Okay, say those features relate to the design, those features relate to the color, those
features related to the stuff, medium, okay, and many other things. आप कोई भी चीज लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मार्टफोन में आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आप सिर्फ प्राइस को देखते हैं, आप और फीचर्स को भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी बात यह है कि ये फिर क्या है, ये वो चीजें हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाती हैं, जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से नॉन प्राइस इंडिकेटर्स पे भी डिफरेंशिएट की जा सकती हो, ऐसे फीचर को हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें डिजाइन वगैरह के फर्क के साथ जो है चेक करते हैं। अगेन उसमें जो एंट्री और एग्जिट है वो क्या है, वो भी ईजी होता है। वजह क्या है कि आप के पास जो है ज्यादा प्रोड्यूसर उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ओलिगोपोली, ठीक है। और ओलिगोपोली में क्या कहते हैं, इट इन्वॉल्व ओनली few sellers of the standardized or differentiated product. So each firm is affected by what? Each firm is affected by its decisions, okay, and its rivals, and it must take those decisions into account, which determine its price and output. Okay. Oligopoly में क्या होता है कि वहाँ पर जो है जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स है वो थोड़ा होता है, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, ठीक है, लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं, और दे आर इन्वॉल्व इन होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. So each firm is affected by the decision of its rivals and must take those decisions into consideration when setting its own price and quantity. Okay. अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो वो कोई प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करने वाले लोग जो हैं थोड़े हैं, मगर उनकी जो स्कोप है वो ज्यादा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो एक कंपटीशन होता है, और आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के डिसीजन के मुताबिक आप फैसला करते हैं, ठीक है। अगर उसने प्राइसेस कम की हैं तो आपको भी प्राइस क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। अभी आप ये एग्जांपल ले लें कि जो हमारे पास टेलीकॉम की फर्म्स हैं, रॉन्ग हो गई, यूफोन हो गया, इस तरह की, ठीक है। अभी आप देखें कि इनकी जो किसी हद तक जो है प्रोडक्ट्स वो सेम सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप जो है वो अभी देखें कि वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस जो है वो दिए होते हैं, और उन पैकेजेस के अंदर रहते हुए लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर एक कंपनी जब FUP आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि सोशल मीडिया के हवाले से पैकेजेस प्रोवाइड करती है, तो फिर दूसरी कंपनी भी जो उस हिसाब से कोशिश करती है कि हम अपने लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। यानी उस इस किस्म के कंपटीशन में एक फर्म का जो डिसीजन है वो दूसरी फर्म के डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज होता है, क्योंकि अगर आप उसके मुताबिक एडजस्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आप जो है वो मार्केट शेयर को लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली की कंडीशन है। और जो फोर्थ कंडीशन है दैट इज कॉल्ड प्योर मोनोपोली। ओके, व्हाट इज प्योर मोनोपोली? और प्योर मोनोपोली जो है इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर where there is only one producer or seller of a particular product or service. Okay, say for example Babda or say Southern Gas Company. What is it? We have to contact Babda for the electricity because it is the only provider of electricity in our area. We don't have any other organization or any other firm which can provide us the electricity. Okay, हम उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। So that is called a pure monopoly. क्यों? कि वापडा जो है जब यहाँ पे है तो कोई और इदारा यहाँ पे नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि उसमें आप देखें ना कि कोई और अगर बिजली प्रोवाइड करने के लिए आए तो वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि वापडा का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उस लेवल की
इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ठीक है। उस लेवल की इन्वेस्टमेंट करना किसी और फर्म के लिए इतना ईजी नहीं है। तो यही वजह है कि हमारे पास जो है वो ये वापडा की मोनोपोली है, और दैट्स व्हाई वापडा ऑलवेज चार्ज अस एज दे नीड, ओके। वो इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं और उसकी प्राइसेस को, और लोगों के पास और कोई भी चारा नहीं है सिवाय उसको कंप्लाई करें, ठीक है। सो as we discussed earlier, the entry of additional firms is blocked, okay. One firm constitutes the entire industry. So pure monopolist produces a single unique product, so the product differentiation is not an issue. इसमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। और वहां पर एक ही लेवल की प्रोडक्ट है और एक ही उसका प्रोड्यूसर है। हालांकि दूसरे मुल्कों में एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज होती हैं और उनकी कोशिश होती है कि अगर एक ऐसी फर्म जो किसी न किसी तरह मोनोपोली जो है वो उसने डेवलप कर दी है, तो उसको जो है वो चेक किया जाए, और उसके जो एक पावर होती है, मोनोपोलिस्ट जो कंपनीज होती हैं, दे हैव पावर टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स, राइट, और दे हैव पावर टू take undue advantage of their the monopolistic powers, okay. तो उस वजह से फिर कुछ कंपटीशन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। हमारे पास भी एक इस किस्म का इदारा है जो मोनोपोलिस्टिक जो कंडीशंस हैं उन्हें चेक करता है और उन्हें मॉनिटर, उन्हें रेगुलेट करता है, ठीक है। आई विल शेयर इट्स नेम लेटर, क्योंकि अभी मैं भूल रहा हूँ शायद। So these are four, the market structure or market models. Okay. This slide will also share what are these characters, what are the characteristics of these four basic market models. Okay, and how they can be differentiated from each other based on certain characteristics. Those characteristics are defined as number of firms, type of product, control over price, conditions of entry, non-price competition, and there are some examples as well. Okay. So what are the market models? First, pure competition, monopolistic competition, oligopoly, and pure monopoly. Okay. So as we discussed earlier, in pure competition, there are large number of firms. Okay, very large number of firms are involved in pure competition, okay. And in monopolistic competition, again there are many firms. However, in pure competition, the firms are having the products which are standardized. Standardized means कि सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उनकी नहीं होती, लो होती है, ओके। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो होती है और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नहीं होती, और एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंशिएट की जा सकती है, सही। कंट्रोल ओवर प्राइस, देयर इज नो एनी कंट्रोल over price, okay, in pure competition. The firms in pure competition have no control on the price. They cannot they increase the price by their own. However, in monopolistic competition they have some, but within the rather narrow limits, okay. They can charge higher prices in a limited scope. So, with regard to the conditions of entry, there are no any obstacles for the firms to enter into the pure competition, the industry which the characterized with regard to the pure competition. Okay, there is very easy entry into this industry or this model. Again, in monopolistic competition, the difficulty level is low and relatively easy. Okay. So what is the competition with regard to price or non-price competition? There is none.
no any competition exists, non-price competition exists in pure competition. Okay. However, in monopolistic competition, considerable emphasis on advertising, brand names, trademark. Okay. लोग जो है आप देखें कि जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए, एक आपने कभी देखा है कि रेफ्रिजरेटर्स के भी आप देख रहे होते हैं जो है एडवर्टाइजमेंट, इवन फोम जो गधे हैं उनके भी आप देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उन्होंने दी होती है एडवर्टाइजमेंट दी होती है, तो उसमें वो फीचर्स बताते हैं कि मल्टी फॉर्म का नाम क्या है, और फिर उन्होंने एक किस्म की जो है वो एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं जिसमें वो बताते हैं, कंडीशंस क्रिएट करते हैं, कुछ कल्चर टच देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और एक फोकस कर रहे होते हैं। देखें, अब कुछ फॉर्म के आप इश्तिहार देखते हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि जी ये जो हमारे फॉर्म हैं ये ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा अरसा चलते हैं, ये नरम है, ठीक है, या वो आपके जो है हेल्थ कॉन्शियसनेस को भी फोकस करते हैं, या वो कुछ कल्चर टच देते हैं कि जी ये जब बच्चियों को ब्याह मतलब जहेज देते हैं तो उसके लिए भी ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इस तरह के वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी पड़ती है उनको, तो वो फिर ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क का वहाँ पे रोल आ जाता है, ठीक है। लोग जो है वो उसको देखते हैं, हालांकि आपको पता है फॉर्म तो फॉर्म होते हैं, मगर फिर भी आप वहाँ जब जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से, उस कम्युनिकेशन की वजह से एक डेवलप हुआ होता है, फिर आप वहाँ पे एक नाम लेकर एक चीज़ परचेज करके आ जाते हैं, सही है। तो ये जो जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, और ये स्टोर्स क्या करते हैं, एक ही लेवल की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मगर उनका प्रेजेंटेशन का अंदाज अलग होता है, जिसकी वजह से आप उन स्टोर्स पे चले जाते हैं। इम्तियाज स्टोर्स की आपने लास्ट टाइम शायद बात की थी, तो आप वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम जो है देखिए, आमतौर पर जो है रिटेल स्टोर पे लोग जाते हैं तो उनका मार्टो क्या होता है कि दे हैव टू जस्ट परचेज दी थिंग्स, ओके, और उन्होंने सिर्फ जो है वो एक लिस्ट लेके जाते हैं और जाके लेके आए। मगर यहाँ इम्तियाज स्टोर ने कहा नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड अ फन, वी हैव टू प्रोवाइड अ टूरिस्ट प्लेस एज वेल, वी हैव टू प्रोवाइड एन एंटरटेनमेंट सेगमेंट एज वेल, ओके। यानी आपको वो इस तरह का एनवायरनमेंट पेश करते हैं कि जहाँ आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि अपनी लिस्ट से आगे चलकर भी चीज़ें खरीद लें और साथ साथ उस खरीदारी को एंजॉय भी करें। वरना हम लोग जो है रिटेल स्टोर पर जाते थे, लिस्ट पकड़ा दी कि ये सामान हमारा लगा देना, वापसी में आके जनाब बंदे ने ले लिया या किसी मुलाजिम को भेजा जाके ले आया, ठीक है। आमतौर पर जो रिटेल स्टोर की खरीदारी होती है वो इस तरीके से होती है, उसमें जस्ट खरीदारी होती है, उसमें कोई इंजॉयमेंट कोई फन नहीं होता। अभी ये जो स्टोर हैं उन्होंने लेआउट ऐसा बनाया हुआ है, वहाँ पे सेटिंग ऐसी की हुई है, स्टोर इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से उनकी सेल जो है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। हालांकि लोग वहाँ क्यों आते हैं, लोगों को तो वो रिटेल आइटम्स चाहिए होते हैं, मगर उनके स्टोर का एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो ये वो डिफ्रेंसिएशन है वो क्रिएट करते हैं, ये नॉन प्राइस इंडिकेटर्स हैं, और जो एक डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्रिएट करते हैं, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, सही है। तो ये इस तरह की जो फर्म्स हैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मॉडल में आ जाती है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गया प्योर कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। वहाँ पे रिलेटिवली नंबर ऑफ फर्म्स इज लार्ज, ओके, और एक में जो है हमने कहा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होती हैं कि उन्हें प्राइस कंपटीशन नहीं होता, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं होता, और यहाँ जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो उसमें भी ज़्यादा होती हैं, मगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लैंक तौर पर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे दो हैं ओलिगोपोली और प्योर मोनोपोली, और अभी आप देखें कि नंबर ऑफ फर्म्स के हिसाब से चीज़ें कम होती जा रही हैं। ओलिगोपोली में बिल्कुल थोड़ी फर्म्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, 2 4 5 6, ठीक है, थोड़ी फर्म्स। जबकि प्योर मोनोपोली कोई एक, ओनली वन फर्म which has an access over those products, right? ओलिगोपोली में भी जो स्टैंडर्डाइज भी हो सकती हैं प्रोडक्ट्स और डिफरेंशिएटेड भी होती हैं, ठीक है। जबकि प्योर मोनोपोली जो है इट इन्वॉल्व्स इनटू द यू नो द सेल एंड परचेज ऑफ
the products, they produce the products which are unique to them. Okay, there is no any close substitute of their products, right? तो मिसाल के तौर पर जो जैसे हमने लोकल यूटिलिटीज एग्जांपल दी वापडा वगैरह की, और दूसरी फर्म्स में आप इंटरनेशनल फर्म्स में आ जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट को किसी हद तक जो है वो मोनोपोलिस्टिक पावर्स हैं, उनके विंडोज जो है वो सॉफ्टवेयर वही डेवलप करते हैं, ठीक है, और कोई नहीं करता। तो इस तरीके से आप सर्च इंजन में आप गूगल आ जाएं तो वो भी उनका एक किस्म का समझो कि एक यूनिक फीचर्स हैं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उस लेवल का, ठीक है। जबकि प्राइस के ऊपर उनको जो है वो प्योर मोनोपोली को एक पावर होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। जबकि ओलिगोपोली में जो कंट्रोल ओवर प्राइस है इट इज लिमिटेड एंड इट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस ऑफ देयर राइवल्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स, ओके। जब वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएं तो एक लिमिटेड उनके पास पावर होता है, मगर जब वो इकट्ठे हो जाएं, ओलिगोपोली में क्या होता है, ये लोग एक कोलेट्रॉल बना लेते हैं, कोलिजन बना लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और तब जाके वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को अपनी प्राइस जो है वो कलेक्टिवली जब मेजर करते हैं तो दे हैव यू नो द कंसीडरेबल पावर, ओके। इसको आप यूँ समझें, उसके मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आप देखें कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक तंजीम है, ठीक है, ग्लोबली। तो वो जो है ये लोग जो है वो प्राइस को डिटरमिन करते हैं ग्लोबली, पेट्रोलियम की प्राइसेस को। कैसे? वो डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जब वो ओवरऑल प्रोडक्शन को कम कर दें तो प्राइसेस जो है वो क्या हो जाती हैं, हाई हो जाती है। और अगर उनमें से कोई भी एक फर्म और उनमें से कोई भी एक इदारा और अगर वो प्राइस जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है तो ओवरऑल जो है वो प्राइस के ऊपर असरअंदाज हो जाता है, ठीक है। फिर जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो वो प्राइस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लोकली आप ले लें, हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री की क्या आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री में भी आप देखें कि शुरू से जो है वो अभी आजकल काफ़ी अरसे से पासवां वाले जो है वो मिल बेच के फैसला करते हैं, और इवन गवर्नमेंट जो रेट मुकर्रर करती है वो भी वो देने के लिए राज़ी नहीं होते, ठीक है। अगर पासवां या इस तरह के इदारे ना हो और हर फर्म इंडिपेंडेंटली शुगर कैन की खरीदारी करे, ठीक है, तो इनके दरमियान में एक कंपटीशन डेवलप हो जाए तो फिर जो है एवरीबॉडी विल बी विलिंग टू ऑफर मोर प्राइस फॉर द शुगर कैन, ठीक है, व्हिच नेवर हैपेंस when there is a collusion between the sugar mill owners, ठीक है, at the platform of PASMA or any other you know the groups, okay। तो ये जो कोलेट्रल डेवलप होता है या ये जो collusion डेवलप होता है, तो इसकी बुनियाद पर जो है ये लोग आप समझें कि प्राइसेस के ऊपर एक कंसिडरेबल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे अदालतें और हुकूमतें भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, सही है। वजह क्या है कि उनके जो ओनर्स हैं उनकी तादाद कम है फर्म्स की निस्बत, यानी एक ओनर की ज़्यादा फर्म्स हैं तो वो फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना आमतौर पर कि ये पांच उंगलियां जो हैं वो बराबर नहीं होती, सही है, नजर आ रही है ना, मगर यही 5 उंगलियां जब उन्होंने निवाला लेना होता है तो बराबर हो जाती है। तो यही बात इन फर्म्स की होती है। वैसे तो एक दूसरे के राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर हैं, मगर जब बात आ जाती है म्यूचुअल बेनिफिट की तो ये फिर मुतहद हो जाते हैं कि नहीं भाई, हम जो है वो अलग अलग होकर एक दूसरे का नुकसान करने से बेहतर नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं और फिर जो है चीज़ों को मिल बांट के खाएं, सही है। तो ये इनकी एग्जांपल हो जाती है कि जब ये कोई कोलिजन डेवलप कर देते हैं तो दे हैव अ कंसीडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस। In pure monopoly, there are many barriers with regard to the entry into the market. Okay, so to some extent, the entry into the pure monopoly is blocked by a number of reasons we will be discussing later on.
जबकि ओलिगोपोली में देयर आर सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो ये एंट्री की जो कंडीशंस हैं उनको हम नेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि फर्म्स कैसे एंटर होती हैं और कैसे एग्जिट होती हैं। ओके, और नॉन प्राइस कंपटीशन के पर्सपेक्टिव में दे टिपिकली ग्रे डील पर्टिकुलर विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, और पेयर मोनोपोली में दे रिलाई मोस्टली ऑन द पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, तो एग्जांपल्स कौन सी हैं? ओलिगोपोली की स्टील की एग्जांपल्स है, ऑटोमोबाइल्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स और मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ओके, और प्योर मोनोपोली में क्या है? लोकल यूटिलिटीज, जिसका हमने कहा कि बिजली, गैस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, दे हैव greater power, monopolistic powers over others. Okay, so sometimes they are the only producer of a particular product. आपने गैस जो है वो जाके इनसे ही खरीदनी है, फ्री गैस से। किसी दौर में पीटीसीएल जो था वो टेलीकॉम सेक्टर में उसके पास मोनोपोलिस्टिक पावर थे। देखिए ये एग्जांपल आप एक नोट करें, टाइम बहुत कम है, कि पीटीसीएल के पास ही मोनोपोलिस्टिक पावर्स था कि जी उन्होंने जो है वो सारी फैसिलिटीज वही प्रोवाइड करते थे टेलीकॉम सेक्टर की। मगर जैसे ही सेल्यूलर मोबाइल फोन की एंट्री हुई, ठीक है, उसकी जो मोनोपोलिस्टिक पावर था वो डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अभी भी पीटीसीएल के पास काफ़ी पावर है, खासतौर पर जो है वो आईएसपी के पर्सपेक्टिव में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग के हवाले से और ब्रॉडबैंड के हवाले से भी। ठीक है, और हालांकि ब्रॉडबैंड में भी काफ़ी और फर्म जो है खैर आ गई हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब मोनोपोली है तो उनके अपने पावर्स हैं, और जब जो है वो और फर्म्स आ जाती हैं तो फिर चीज़ें जो है प्रोडक्शन की सस्ती हो जाती है। ऑटोमोबाइल की एग्जांपल ले लें, हमारे पास जो है वो एक चंद फर्म्स हैं या चंद कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको ही अख्तियार है कि यहाँ पे गाड़ियाँ बनाना, असेंबल करना और सेल करना। ठीक है, और जो है किसी कंपनी को यहाँ पे आने नहीं देते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कंपनी है वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं गाड़ियों के, या ज़्यादा प्राइसेस जो है वो चार्ज कर रही हैं। अगर और भी कंपनीज को आने की इजाज़त दी जाए यहाँ पे बिजनेस करने की, तो ये इनकी जो गाड़ियों की जो कीमत है वो डाउन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे जो ओवरऑल जो इनका मार्केट शेयर का इशू है वो क्रिएट होगा, और दे विल बी विलिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन लोअर प्राइस। ओके, तो ये हमारा सेशन यहाँ पे एंड होता है, एंड आफ्टर सम टाइम